ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। नाइन्थ क्लास आज हम थर्ड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ओके बेटा, एटम्स क्या होता है? एक छोटी से छोटी चीज़, इकाई जो होती है छोटी से छोटी, उसको हम एटम बोलते हैं। अब जो बहुत सारे एटम्स मिल जाते हैं आपस में, दो या तीन या इससे ज़्यादा, जितने भी एटम्स आपस में मिल जाते हैं तो उनको हम बोलते हैं मॉलिक्यूल्स। ठीक है, जैसे कि एक ये दीवार खड़ी करी गई है। ठीक है, दीवार खड़ी करने के लिए सबसे पहले एक चीज़ चाहिए होती है हमें, ईंट होगी तो ही तो दीवार खड़ी होती चली जाएगी। तो वो जो ईंट हो गई, उस तरीके से वो पहला एक छोटा सा हिस्सा होता है ना, उस छोटे से हिस्से को एटम बोलते हैं। ओके, कोई भी चीज़ जब बनती है तो उसको बनाने के लिए एटम्स, सिंगल मॉलिक्यूल जो सिंगल चीज़ होती है उसको एटम बोलते हैं। जब बहुत सारे हो जाते हैं इकट्ठे तो उनको हम मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। ओके, अब चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं। इसकी रीडिंग साथ साथ मैं एक्सप्लेन करूंगी। ओके, कम शिवम, रीड द चैप्टर। Chapter 3 Atom and Molecules. कम हियर बेटा, कम हियर। Chapter 3 Atom and Molecules. Ancient Indian and Greek philosophers have always wondered about the unknown and the unseen form of matter. The idea of divisibility of the matter and considered long back in India. Ancient Indian and Greek philosophers have always wondered about the unknown and the unseen form of matter. The idea of divisibility of matter and considered long back in India around 500 BC. And Indian philosopher Maharishi Kannad postulated that if we go on a dividing matter Padarth, we should get a smaller and smaller particles unlimitedly. A time will become when we shall always come across the smallest particles beyond which further division will be not be possible. He named the particles Parmanu. Another Indian philosopher पहले बेटा इनका जैसे इनको खोज करी गई थी तो जो नाम निकाले गए थे हर किसी ने अलग अलग, तो सबसे पहले जो हिंदी में हम इसको बोलते हैं परमाणु। ठीक है, अणु, परमाणु, ये नाम होते थे पहले, अब भी यही है लेकिन हिंदी में बोलते हैं हम इसको। इंग्लिश में एटम मॉलिक्यूल्स है तो हिंदी में अणु परमाणु। ठीक है, पढ़िए बेटा। elaborated the doctrine and said that these particles normally exist in combined from which give a various form of matter. Around the same area, ancient Greek philosophers Democritus and Lysistrata suggested that if we go dividing matter, a stage will come with particles obtained cannot be divided further. Democritus called the indivisible particles atom, meaning indivisible. All this we have based on a philosophical consideration and not much experimental work of were delayed. This idea could be done in the 18th century. By the end of 18th century, scientists recognized the difference between elements and the compounds and they naturally become interested in finding out how the element combine and what happens in the combine. Anton Lavoisier laid the foundations of chemical science by establishing two important laws of chemical combination. 3.1 ओके बेटा, केमिकल कम्बिनेशन। केमिकल कम्बिनेशन का मतलब जब दो चीज़ों को आपस में मिला दिया जाएगा तो वो जो मिलकर जो चीज़ आपके आगे आती है तो केमिकल कम्बिनेशन कहलाती है। जब दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को आपस में मिला देंगे और मिलाकर जब एक चीज़ आपके सामने आएगी, दैट इज नोन एज केमिकल कम्बिनेशन। ओके बेटा। Law of chemical combination. The following the two laws of chemical combination we established after much experiment by Lavoisier and Joseph L. Proust. 3.1 Law of conservation of mass. If there is a change in a mass of chemical change, chemical reaction take place. Activity 3.1. Take one following set X and Y chemicals. Prepare separately a solution of any one pair of substance listed under X and Y and each of 10 ml water. Take a solution of Y in a conical flask and solution X in a smaller test tube. Hang the small test tube in a flask carefully. See the solution do not get mixed. Put a cork of a flask. Weight a flask with the cornet carefully. Now till the swill of flask so that the solution X and Y get mixed. Wait again. What happened in the reaction flask? Do you think the chemical reaction take place? Why should we put a cork in the mouth of flask? Does the mass of the flask and its contents change? Law of conservation of mass states two mass can neither be created by dissolved in a chemical reaction. Law of constant proportion. Last year along the scientists noted that many compounds were composed two or more elements and each such compound had the same element in the same proportion. हमारे अब
इसमें क्या बताया गया है कि जो एटम्स जो होते हैं वो एटम्स को हम एक केमिकल कंपोजिशन बताई गई है। केमिकल कंपोजिशन में बताया गया है कि लॉज ऑफ केमिकल कम्बिनेशन, कि जो लॉज ऑफ केमिकल कम्बिनेशन में है, जब दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को आपस में मिलाया जाएगा तो लॉज ऑफ केमिकल कम्बिनेशन कहलाता है। लेकिन इसमें साथ में एक बात ये भी याद रखनी होती है कि जितनी भी चीज़ें हम मिलाते हैं, कैन नाइदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉय, ना ही तुम उनको अपने आप बना सकते हो ना ही मिटा सकते हो। पर इसमें जो भी है, इसमें हम बनाना नहीं है, मिलाते हैं जो भी चीज़ें, लेकिन सेम रहेंगी, कोई कम ज़्यादा नहीं हुई, सेम रहेगी। जितनी मिलाओगे वो बन के आएगा, उतना ही प्रोपोर्शन बन के आएगा, लेकिन क्या बन के आएगा वो आप देखना अभी, ठीक है। ओके, लॉज ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन में इसके बाद हमारी एक डेल्टन जो साइंटिस्ट थे उनकी एटॉमिक थ्योरी बता रही हैं। उनकी एक एटॉमिक थ्योरी थी, उन्होंने एटम्स के बारे में एक थ्योरी बनाई है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको लर्न भी करना है, डेल्टन एटॉमिक थ्योरी। तो इसके बारे में रीडअप करता है शुभम, रीडअप करेगा और फिर मैं आपको बताऊंगी कि क्या बताया था। ओके, In a compound such as water, the ratio of mass of hydrogen to mass of oxygen is always 1:8. Whatever the source of water, thus if 9 kg of water decompose 1 g of hydrogen and 8 g of oxygen are always obtained. Similarly in ammonia, nitrogen and hydrogen are always present in ratio 14:3 by mass, whatever method of source of form which is obtained. This lead to law of constant proportion, which is also known as law of different proportion. This law was stated by Proust in a chemical substance. The elements are always present in different proportion by mass. The next problem faced by scientists was to give a appropriate expression of the laws. British chemical John Dalton provided the basic theory of the nature of matter. ओके बेटा, एक बात देखिए, अब आप पानी है, पानी तो सिंगल नहीं चीज़ों से बना है, ठीक है। तुम अपने आप पानी नहीं बना सकते, ये नेचुरली है, लेकिन ये किस किस से मिला है, वाटर, H2O, ये वाटर का फॉर्मूला है। तो इसको बनाने के लिए क्या है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। जब ये दो चीजें मिलती हैं, और क्या हाइड्रोजन के यहाँ पर कितने हैं नंबर, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, इससे ज्यादा मिलाओगे तो पानी नहीं बनेगा, सेम प्रोपोर्शन में होनी चाहिए ये चीजें। तो ये जब दो चीजें मिलती हैं तो ये आपके क्या है, जब सेम प्रोपोर्शन में मिलेंगे तो लॉज ऑफ, क्या था लॉज ऑफ, कौन सा पढ़ा था आपने, जल्दी बताइए बेटा। यस, कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉज ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन भी कहेंगे कि कांस्टेंट में होता है, जितनी चीज जो है वही होगी, उससे ज्यादा नहीं कम। तो वो जो बिल्कुल सेम मात्रा में जो चीज होती है उसको लॉज ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन बोला जाता है। ओके, क्लियर हो गया। आप ऐसे तो नहीं लिखते इसका फार्मूला, ये नहीं लिखोगे आप, ऐसे तो नहीं लिखोगे H3O2, ऐसे तो नहीं लिखोगे, ये लिखोगे तो ये कुछ नई चीज हो जाएगी, वाटर तो नहीं कहलाएगी, ठीक है। तो फिर जो सेम प्रोपोर्शन में चीज होती है इसमें लॉज ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन कहलाता है। ओके ओके बेटा, शुभम नेक्स्ट रीड अप। Dalton picked up the idea of divisibility of matter, which was still just a philosophy. He took the name atoms and give by the Greek and say the smallest particle of matter are atoms. His theory was based on the laws of chemical combination. Dalton's atomic theory provided the explanation for the law of conservation of mass, law of different proportions. Okay. According to Dalton atomic theory, all the matter whatever the element of a compound, a mixture is composed by small particles called atoms. The postulates of the theory may be stated are as follows. All matter is made of very tiny particles called atoms. Atoms are indivisible particles which cannot be created by destroyed in chemical reactions. Atom is of a given element of identical in mass and chemical properties. Atoms of different elements have different mass and chemical compositions. Atoms combine a ratio of small whole numbers of compounds. The relative numbers of kinds of atoms are constant in a given compound. You will study the next chapter to all atoms made up of smaller particles. What is atom? ओके बेटा, देखिए डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में, डाल्टन थे एक साइंटिस्ट थे, ठीक है, उन्होंने एटम की थ्योरी दी थी।
आज हम जो एटम की थ्योरी पढ़ते हैं वो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी पढ़ते हैं और यही आपको आगे चलेगी अभी तो, ठीक है। जब कोई और साइंटिस्ट आएंगे और नई खोज होगी तो फिर वो चलेगी, लेकिन फिलहाल जो हमारी एटम की थ्योरी है वो किन्होंने दी थी? डाल्टन ने दी थी। और डाल्टन के अकॉर्डिंग क्या बोला गया है? अकॉर्डिंग टू डाल्टन एटॉमिक थ्योरी ऑल मैटर्स whether an element, a compound or a mixture is composed of small particle called the atom। कोई भी चीज़ है, कोई भी चीज़ बोला इन्होंने इस लाइन में, क्या बोला? कोई भी चीज़ हो, कोई मिक्सचर हो, कुछ भी हो, एक छोटी सी छोटी चीज़ से मिलके बनी हुई होती है, ठीक है। मैंने एक एग्जाम्पल आपको दीवार का दिया था, एग्जाम्पल था ये। आपकी खुद की बॉडी भी है, एक छोटी सी छोटी चीज़ है जो बनी हुई है किससे? सबसे छोटा चीज़ है हमारी बॉडी का जिससे मिलके बनी, सेल, ठीक है। उसी तरीके से ये तो हमारी बॉडी की बात है, लेकिन हमारी बॉडी से बाहर भी बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं ना। तो जो जैसे वाटर का एग्जांपल है, तो इसमें एक छोटी से छोटी चीज़ जो है वो किससे मिलके बनी हुई होती है? जिसका नाम है वो है एटम। ओके, छोटी से छोटा इकाई होती है एटम। तो एटम की थ्योरी हमारे डाल्टन जी ने दी थी। क्या बोल रहे थे ये? ऑल मैटर्स इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। कोई भी चीज़ हो, वो चीज़ किससे मिलके बनी है? बहुत छोटी से छोटी चीज़ से, वो उसका नाम है एटम। ओके बेटा। सेकेंड, एटम्स आर इंडिविजुअल पार्टिकल्स विच कैन नाइदर बी क्रिएट नॉर डिस्ट्रॉय इन अ केमिकल रिएक्शन। जब एक केमिकल रिएक्शन करते हैं तो इसमें एटम्स ना ही तो खत्म किए जा सकते हैं, ना ही एटम्स बनाए जा सकते। अपने आप पे एटम नहीं बनाओगे कोई नया, जो है उन्हीं को तो लोगे, ठीक है। पानी के लिए H, हाइड्रोजन O, ऑक्सीजन, ये अपने आप ही तो आ रहे हैं, तुमने अपने आप बना के तो नहीं डाला। जो है इसमें ना ही आइटम बनाए जाएंगे, ना ही आइटम खत्म किए जा सकते हैं, ठीक है, किसी भी केमिकल रिएक्शन में। थर्ड पॉइंट, एटम ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रोपोर्शंस। देखिए, जब रिएक्शन करी जाती है तो लेफ्ट हैंड साइड, मतलब इस साइड के और इस साइड के जो प्रोपोर्शंस होते हैं उनके जो ये नंबरिंग अभी मैं दिखा रही थी, इस साइड और लेफ्ट रिएक्शन के इधर और रिएक्शन के उधर जो होंगे वो बिल्कुल कैसे होते हैं? सेम होते हैं, ना ही तो कम होते हैं, ना ही वो ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव द डिफरेंट मासेस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। जो डिफरेंट डिफरेंट आइटम्स होंगे उनकी डिफरेंट डिफरेंट बोला है, क्या होता है? डिफरेंट एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मासेस। उनका मास अलग अलग होएगा सभी एटम्स का, और सभी की प्रॉपर्टीज अलग होएगी। जैसे हमारी गैसेस के बारे में बात करते हैं, एक गैस ऑक्सीजन है, एक गैस हाइड्रोजन है, उनका प्रोपोर्शन होगा अलग अलग ही तो है सबका, ठीक है, लेकिन उनकी प्रॉपर्टीज अलग अलग है। साथ में उनकी प्रॉपर्टीज भी, मतलब उसकी ऑक्सीजन हमारे को किस काम आती है, उनकी अलग अलग प्रॉपर्टीज है ना, और हाइड्रोजन किस काम आएगा, उसकी प्रॉपर्टीज। तो दोनों सेम नहीं होती, ये इसमें एटम्स में सेम नहीं होती, इनकी प्रॉपर्टीज भी अलग होती हैं और इनके भार, मास, वो भी अलग होते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, द रिलेटिव नंबर एंड काइंड ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड। कोई आपको कंपाउंड दिया जाता है, कोई आपको कंपाउंड दिया जाएगा, क्या? जैसे पानी दे दिया, कंपाउंड हो गया, क्योंकि एक चीज़ से तो नहीं बना, जो ज़्यादा चीज़ों से मिलके चीज़ बनती है वो कंपाउंड ही तो कहलाती है। तो वो कंपाउंड का प्रोपोर्शन कैसा होता है? एक कांस्टेंट होता है, ठीक है। इसमें इतनी चीज़ मिलेगी, ये चीज़ मिलेगी, ये मिलेगी, जब वो चीज़ जाके बन के आती है सामने, ठीक है। तो कांस्टेंट चीज़ें मिलाएंगे तभी वो बन के आएगी। अगर थोड़ा सा भी जिसमें ज़्यादा कम होगा तो वो चीज़ सेम वैसी चीज़ नहीं बनती है यहाँ पर एटम्स में। ओके, नेक्स्ट है आपका एटम। जो छोटी से छोटी इकाई होती है किसी भी चीज़ की तो उसको हम एटम बोलते हैं। यस बेटा, ओके शुभम। 3.2 What is atom? Have you ever observed the massive building walls? From this walls room of then we collection ओके of बेटा, rooms. अभी इसमें वही चीज़ आपको बताई गई है। अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, एक दीवार का एग्जाम्पल दिया था, वही यहाँ पर बताया गया है कि दीवार जब बनाई जाती है तो छोटी से छोटी चीज़ जब बन के सामने आती है तो वो ब्रिक होती है, ईंट होती है, ईंट से ही तो इकट्ठा करते चले जाते हैं और चीज़ उसमें मिला मिला के सीधा दीवार बन जाती है। ठीक इसी तरीके से कि जब हम कोई चीज़ हमारे सामने आती है तो एक नहीं होती, उसमें काफ़ी चीज़ें मिलाई जाती है, लेकिन जो सिंगल चीज़ होती है उसको हम एटम बोलते हैं। ओके बेटा। Collection of room from a building. What is a building block?
of the huge building. What about the building block and antihero? It is small grain of sand. Similarly, that the building blocks of metals are atoms. How big are atoms? Atoms are very small. They are smaller than anything that we can imagine or compare with more than millions of atoms. When the stacked volume make a layer barely of this sheet of paper. We might be think that if the atoms so are insignificant in size, why should we care about them? This is because the entire world is made up of atoms. We may not able to see them, but they are there and constantly affecting whatever we do. Through modern techniques, we can now produce magnified images to surface of elements showing atoms. 3.21. What are modern day symbols? Atom are differently element. Dalton was the first scientist to use the symbols of element in a very specific sense. ओके बेटा, अब आपको मैंने बताया था ये कि छोटी सी छोटी चीज़ को ही एटम बोलते हैं। तो व्हाट इज एन एटम? एटम क्या है? अ स्मॉलेस्ट पार्टिकल इज नोन एज एटम। स्मॉलेस्ट पार्टिकल को ही एटम बोला जाता है, ठीक है। एटम्स आर वेरी स्मॉल, दे आर स्मॉलर देन एनीथिंग दैट यू कैन इमेज और कंपेयर विद। किसी चीज़ से अगर किसी को कंपेयर करते हो ना, तो वो एटम तो बहुत ही छोटी इकाई होती है, ठीक है। बहुत छोटी से छोटी चीज़ को एटम बोला जाता है। तो हमारे टाइम, मॉडर्न टाइम की बात है, बहुत पहले के समय की बात है, जब ये एटम्स की खोज करी थी तो सभी एटम्स को क्या था, अलग अलग, अब जो है अब तो उनके ना नेमिंग करी जाती है। हाइड्रोजन के लिए H, ऑक्सीजन के लिए O, सल्फर के लिए S, इस तरीके से नेमिंग की जाती है। लेकिन पहले के टाइम पे इनकी खोज जब हमने कर ली थी तो इनको कैसे मेंशन किया जाता था? देखिए पेज नंबर 33 पे है, इस तरीके से मेंशन किया जाता है। बेटा हाइड्रोजन को हम क्या मेंशन करते थे? H। लेकिन अब हम H मेंशन करते हैं, लेकिन पहले के टाइम पे H नहीं मेंशन करते थे। हाइड्रोजन, अगर हमें हाइड्रोजन को शो ऑफ करना होता था तो क्या करते थे? राउंड और उसमें एक और राउंड, ये इस तरीके से हम हाइड्रोजन को दिखाते थे। ये क्या होता था पहले के टाइम पे? हाइड्रोजन। ये क्या कहलाता था? हाइड्रोजन। इसी तरीके से आपकी बुक में देखिए, यहाँ पे पेज पे कि अलग अलग, ये देखिए यहाँ पे है टेबल में, ये देखिए ये, ठीक है। ये हर एटम के अलग अलग सिंबल थे। तो ये सिंबल जब डाले जाते थे, अब तो हम बोलेंगे तो तुम फटाफट, मैं बोलूँगी हाइड्रोजन लिखो, ऑक्सीजन लिखो, तो सिंबल लिख दोगे फटाफट। लेकिन पहले जो सिंबल थे वो सिंबल ऐसे चलते थे, आपकी बुक में है जो, ठीक है। हाइड्रोजन के लिए इस तरीके से, कार्बन के लिए पूरा राउंड बना के उसको थोड़ा ग्रेइश कर रखा था, ऑक्सीजन के लिए सिंगल O कर रखा था, और फॉस्फोरस के लिए राउंड अप करके उसमें ऐसे एरो कर रखी थी। तो इस तरीके से ये देखिए, ये आपकी बुक में है, ये देखिए, ठीक है। ये टेबल आपकी क्या थी? पहले सिंबल्स थे ये, किसके? एटम्स के। लेकिन धीरे 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 जैसे ही खोज होती चली गई, साइंटिस्ट आते चले गए, तो इनके सिंबल सब चेंज हो गए हैं। अच्छा, अब आता है IUPAC। अब बेटा IUPAC होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये याद कर लेना इसकी फुल फॉर्म और इसको मार्कअप कर लो। IUPAC, नेक्स्ट पेज नंबर 34 पे है IUPAC। ओके, IUPAC क्या होता है कि आप देखिए, आप इंडिया में हैं, इंडिया से बाहर हैं, किसी भी कंट्री में चले जाए। अब इंडिया में हैं तो हम जैसे भी कोई इंडियंस लैंग्वेज में हम यहाँ पे कुछ भी बोलेंगे तो सबको पता होगा। यहाँ से बाहर भी चले जाएंगे, दूसरे स्टेट में चले जाएंगे, दूसरे में जाएंगे, तो ये पता है हम क्या बोल रहे हैं आपस में, क्योंकि इंडियंस सबको आती है। इंडिया तो सब मतलब हिंदी लैंग्वेज तो सबको आती है, लेकिन इंडिया से बाहर हम जाएंगे तो हमारी लैंग्वेज तो नहीं आती किसी को। तो हम अपना नाम तो नहीं डाल सकते, हाइड्रोजन के लिए कुछ और, इसके लिए कुछ और नहीं। तो IUPAC एक ऐसा नाम होता है जो कि पूरी जगह अप्लाइड होने वाला नाम होता है, ठीक है। आप बाहर जाके उसको बोलिए, यहाँ पे रह के बोलिए, किसी भी कंट्री में जाके बोलिए, वही चीज़ ही बोली जाएगी। तो IUPAC एटम्स के लिए यूज़ करते हैं। क्या है ये IUPAC? फुल फॉर्म इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। अप्रूव्ड नेम ऑफ एलिमेंट, अप्रूव्ड नेम ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट्स के नाम होते हैं, ठीक है। इससे ही हम IUPAC
नेमिंग है एक तरीके से उनका एलिमेंट्स का। अब जो हम सिंबल्स यूज़ करते हैं यहाँ पे, मैनी ऑफ दी सिंबल्स आर एट द फर्स्ट वन और टू लेटर्स। अब लेटर्स से यूज़ किया जाता है, एक या दो लेटर, 3 लेटर्स नहीं यूज़ होते अब 2 लेटर्स में ही नाम लिखा जाता है, ठीक है। फर्स्ट लेटर ऑफ सिंबल इज ऑलवेज रिटन एज अ कैपिटल लेटर अपर केस एंड द सेकेंड, अब ये याद रखना जो भी नाम होगा पहला लेटर हमेशा कैसा होता है, ये याद रखना, क्योंकि ये याद हो गया तो आगे आगे तक तुमने पढ़ना है ना, 10th में भी पढ़ना है, उससे आगे अगर साइंस लेते हो जब भी आपको करना है तो ये याद रखना। हाइड्रोजन जैसे फर्स्ट लेटर, हाइड्रोजन नहीं कहनी, फर्स्ट लेटर जो भी होता है किसी भी सिंबल का, तो फर्स्ट लेटर होता है एक या दो लेटर में लिखा जाता है। फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होएगा, H जैसे हाइड्रोजन हो गया कैपिटल। अब एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम को AL लिखेंगे, तो जब दूसरा लिखना होता है वो कैपिटल नहीं होगा, वो स्मॉल लेटर में जाएगा। फर्स्ट हमेशा कैपिटल लेटर, फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल में, सेकेंड लेटर स्मॉल में जाएगा, ये याद रखना अच्छे से, ठीक है बेटा। तो आपने एटम की डेफिनेशन को मार्कअप करना है, उसको भी लिखना कॉपी में। आज के लिए सिर्फ इतना ही, आगे हम नेक्स्ट करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में करेंगे आगे हम। इतना आप अच्छे से इसको रीडअप करिएगा चैप्टर को और मार्कअप कर लीजिएगा, जहाँ से कुछ समझ में नहीं आया होगा मैं बताऊंगी। ओके ओके बेटा।